कह रहे हैं कि हम रिफंड करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन हम एक तरफ कहते हैं कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दूसरे कहते हैं रिफंड। क्या रिफंड सिंप्लीफिकेशन है या कॉम्प्लिकेशन है? Your speech absolutely outstanding and eye-opener. That there is a discussion of this nature taking place in the GST Council. The most important point you made was about land and real estate. It is indeed a very serious issue, but I'm just wondering if you can share with us why is it land and real estate has been left outside the scope of GST. Just to elaborate on consequences of leaving it out, you mentioned it's going to have a very significant adverse consequences on the evolution of GST. Let me provide you some of the work I have done on this topic. Of the total investment in India, which is about 35 lakh crore rupees, approximately 1/3 is on account of real estate. And that doesn't even count investment in land. These are the buildings. Take the example of this hotel. All the work all the investment that is made in the hotel is a real estate investment. Under the model law that has been drafted by the government, with consent of the GST Council, it says that no input tax credit will be allowed. And during the meeting, when the matter was closed, I said, let's keep this rope in, let's not freeze it, because again we are going to be the only country, as far as I know, in the world, कि हम GST लागू भी कर रहे हैं और उसको ऑलमोस्ट ये रियल एस्टेट वाले के बाद कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं, उसकी जो स्पिरिट है उसको भी किल कर दे रहे हैं. बट एज वी नो कि इंडिया में रियल एस्टेट का काम रियल एस्टेट डेवलपर्स कितना करते हैं और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स कितना करते हैं, वो हम सब जानते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम ब्लंट and we are known for that, we are being abused for that, but that's the reality कि रियल एस्टेट में एक्चुअल इन्वेस्टर्स का पैसा कितना लगा होता है और देश के पॉलिटिशियंस और देश के करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का पैसा कितना लगा होता है, वी ऑल नो. दैट्स व्हाई आई सेड फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट नोबडी इन दैट मीटिंग वाज रेडी टू एक्सेप्ट that this could be the reason. There is no official minute of this, but almost by majority it was decided that land reform, real estate won't be this, and I told that, and I categorically, please note this in minutes, that this is going to kill the spirit of GST, and it will. That's why I said, but these are the things that we can always check, always change. कल को सरकार और देश के बाकी फाइनेंस मिनिस्टर्स थोड़ा सा भी अगर उनको समझ में आए, वी कैन ऑलवेज डू इट. सिंप्लिसिटी के लिए है या कॉम्प्लेक्सिटी के लिए है, मुझे तो लगता है अभी तो let's see the forms, how the because I was discussing with the officers also. मैं सिर्फ मीटिंग में मेंबर्स के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ नहीं, बल्कि मैं कोशिश करता हूं कि मेरे ऑफिसर्स की टीम और जो बाकी ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके साथ भी थोड़ा थोड़ा बीच में ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द बिहाइंड द कर्टेन डिस्कशंस करते हैं, नॉट फॉर सम बैड रीजंस बट फॉर गुड रीजंस, कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनती रहे. मुझे लगता है कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जो अभी मैं फोर्सी कर पा रहा हूं, शायद हम कोशिश करके फॉर्म्स के रूप में, जब हम फॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें, फॉर्म्स आर नॉट बीइंग डिस्कस्ड येट, एंड माय फोकस इज कि हम फॉर्म्स को जितना मिनिमम पॉइंट बेस्ड रखें, जितना, बिकॉज आप सिर्फ इंटरनेट पे लाके किसी फॉर्म को सिंपल नहीं कर सकते हैं. द काइंड ऑफ स्मॉल टाउन ट्रेडर आई एम टॉकिंग अबाउट, उसके लिए मतलब व्हाट्सएप रखना आसान है, उसके लिए ऐप रखना आसान है, नेट एंड्रॉयड फोन रखना आसान है, बट उसमें जीएसटी इनकी वेबसाइट पे जाके 25 तरह की इंफॉर्मेशन भरना, एंड व्हेन ही इज डीलिंग विद द, अगेन बैक ऑफ द माइंड में वही है, वी आर डीलिंग विद द इंस्पेक्टर्स, वो इतना आसान नहीं है. सो द मोर इजीएस्ट फॉर्म वी कैन डेवलप, एंड आई वुड लाइक इफ पीएचडी कैन रेंडर इट्स सर्विसेज, एक्सपर्टीज, I mean, for my contribution to GST, I would be happy. I can assure that before every GST meeting, I can have a meeting with the team to discuss the agenda, to discuss the issues that are going to be discussed there, and make a good. Thank you, sir. Hello, sir. Good morning to you all. I am requested to Mr. Manish Sisodia. I am very happy to hear from you that you are open for the discussions, problems, and to take up it.
The real problem, sir, is that we have sent so many suggestions to the CBC, from institute also, from other also, and most of them are unattended. We personally found that whatever act has been made, there is nobody to see it from the users-friendly angle or their benefit or losses. So I will request you to give me some time or place when I can meet to you, whenever you are free, to bring to your notice, so that 18th is the next meeting of council, you should try to do something. Thank you. My additional commissioner of Delhi government and GST department now is here, Mr. Anand. I would like to request you to take his number and have a meeting with him first, maybe, and then we can discuss. Will that be useful, sir? Thank you, sir. Right, sir. सर अब प्रेजेंट डिस्प्ले। तो मेरा सवाल है, ये जो 28% का स्लैब है ये एक बड़ा चिंता का विषय है। आपने अभी जो उदाहरण दिए कि टैक्स कम करने से टैक्स बढ़ा, और कई महीनों तक या कई एक आध साल भी शायद गुजर गए इस लड़ाई में कि 18-20% का कैप बिल में होना चाहिए, और तब भी हमको यही सुनने मिलता था कि ये बिल में इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराना पड़ेगा, लेकिन सरकार का कोई इरादा नहीं है 20% के ऊपर जाने का। तो ये 28% का स्लैब क्यों माना गया और इसमें किस तरीके की आइटम्स आएंगी? जो हमने सुना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं इसके अंदर। नॉर्मली 28% का टैक्स जो था वो ये था कि कोई लग्जरी आइटम है या सिन आइटम्स हैं। मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उस कैटेगरी में आता है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे टेलीविज़न है, जो आज फार्मूला बताया जा रहा है कि जो 28-30% के आसपास है उनको 28 में डाल रहे हैं। सर, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताऊंगा कि टेलीविज़न जो आज उस रेट पे है उसमें सबसे ज़्यादा चोरी है और दिल्ली गढ़ है सर इस आइटम का। जितना टीवी ऑफिशियली नहीं बनता उससे ज़्यादा अनऑफिशियल दिल्ली में प्रोड्यूस होता है और पूरे देश में जाता है। ट्रेड होता है यहाँ से। ये सबको मालूम है सर, कहाँ होता है ये भी सबको मालूम है। क्यों उसका इलाज नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम जो नया टैक्स रिफॉर्म आ रहा है उसमें ये 28% का जो स्लैब है, बहुत ज़रूरी है कि ये सिलेक्टेड और कुछ स्पेसिफिक रीज़न के कारण आइटम्स है जो उसमें जाएं, नॉट जो कि आम जनता आज के दिन एक एसेंशियल आइटम की तरह यूज़ करती है। मैं आपके विचार जानना चाहूँगा सर। नो, आई कंप्लीटली एग्री विद यू व्हाट यू आर सेइंग। एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट्स की लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। आप कंप्लायंस पे एनफोर्स करिए। फिर आप 12% की कंप्लायंस पे एनफोर्स करना चाहेंगे, इट्स नॉट, आई मीन वी लिव इन इंडिया, वी हैव टू कंसिडर, एंड वी लिव इन डाइवर्सिफाइड कंट्री, वी हैव डाइवर्सिफाइड मार्केट, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक सोशो बैकग्राउंड सिटीज। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर के शहर में यू कैन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए आई वॉज अगेन नॉट टू मच ऑफ सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की थी दिल्ली और आसपास के फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ एक छोटा सा अनऑफिशियल ग्रुप बनाने की कि हम लोग टैक्स आर्बिट्राज खत्म कर सकें इन सारी चीज़ों पर। और उनका हमेशा जोर मुझे यही रहता था, भाई सारे देश में 14% हो गया है, तुम 14% क्यों नहीं कर रहे हो? दिल्ली में हम लोग 12%, 9 से 12% पे अटके हुए थे, और मेरा ये मानना था कि और कम होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि जितना हम कम कर सकते हैं उतना मैं ट्रेडर से बैठ के कर सकता हूँ ना बातचीत, फिर मेरे ऑफिसर्स बातचीत कर सकते हैं ना। जितना हम ऊपर रखेंगे वो सब, मुझे भी पता है मेरा इंस्पेक्टर कैसे काम करता है, मुझे भी पता है ट्रेडर कैसे काम करता है। सो कोशिश यही है सर। आई डोंट नो कि लग्जरी आइटम्स को इसमें अभी, क्योंकि अभी डिस्कशंस कमोडिटीज पे हुआ नहीं है, बट अगेन I personally feel TV, mobiles, these are not the things that we can have on 28% today. It's going to, I mean, जितना ग्रे मार्केट है अभी भी मोबाइल का, जितना ग्रे मार्केट इंडिया में, दिल्ली में है, आई नो दैट, उसको हम और बढ़ा देंगे अगर, और उसको फिर पूरे देश में, हाँ, तो आई डोंट थिंक वो हम कर हमें करना भी चाहिए। बहुत पॉपुलर गुड्स को तो कम से कम इस तरह से नहीं रखना चाहिए। सिन गुड्स आई एग्री, हाँ। So whatever list, or maybe if you can submit a draft, हमने अपनी तरफ से, दिल्ली की तरफ से एक ड्राफ्ट बना के भेजा है, we can share with that. There's no, that's not a classified draft that we have. I mean we have come to those conclusions with lots of discussions with our trade associations, market associations. हमने बहुत सारे inputs लेने के बाद अपना एक ड्राफ्ट बनाया है, वो मैं PhD के साथ शेयर कर लेता हूँ। वो उसमें और भी आपके inputs होंगे, because अभी 18th को जो मीटिंग होने वाली है उसमें शायद ये डिस्कस नहीं होने वाला है। उसके बाद सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में डिस्कस होंगे स्लैब्स।
हाँ, हम आपके साथ अपना ड्राफ्ट जो दिल्ली के इनपुट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, और उस पर जो भी आपके कमेंट्स हों वो मैं इनकॉर्पोरेट करने को सर एक पॉइंट मैं रखना चाह रहा था आपके सामने। हमारा ये ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कमिटमेंट फ्रॉम आवर साइड, आनंद जी के साथ मैं टच बेस में हूँ आपके साथ। सर अगर पीएचडी हमारे जो सजेशन हमने भेजे हैं हम एक बार मिल लेंगे, और जो भी जीएसटी में आपको पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट, सजेशन, कंट्रीब्यूशन चाहिए, वी कमिट एंड स्टैंड बाय। जब आप बुलाएंगे तब हम आपके पास होंगे। हम चाहते हैं जीएसटी हम सबके लिए गुड एंड सिंपल टैक्स हो। दैट इज व्हाट वी ऑल आर लुकिंग फॉर। No, I agree, and not only this, let's not keep it open. If we can drive some mechanism of that, because these are regular exercise. हर महीने 1-2 meetings होनी है. So can we make a practice that these two people from PhD will always be available? कि if I'm reading sometimes the drafts or maybe forms or maybe other proposals, so उन पर मुझे input लेने के लिए before entering into meeting, maybe one day, क्योंकि सरकार में ये भी प्रैक्टिस है कि जितनी मीटिंग्स होती हैं, मैं अभी अपने साथी से बात कर रहा था कि 18th की मीटिंग के लिए लॉ से वेटेड ड्राफ्ट आ गया कि अभी तक आया नहीं है। तो हमने जो तैयार करके दिया है वो लॉ से वेट होके आना है। वो लॉ से वेटेड मेरे को मिलेगा, मैं उसमें पढ़ूंगा, फिर मैं अपना पुराना वर्जन पढ़ूंगा, पुराना वर्जन वीजा-वी नया वर्जन, लॉ वेटेड वर्जन पढ़ के फिर मुझे वहां के लिए जो भी अपना ग्राउंड तैयार करना है, तो वो तैयार करने के लिए मेरे को बहुत समय नहीं मिलता है। ये सारा मैकेनिज्म इस तरह से, तो अगर कोई टीम मेरे साथ उस तरह की यहां से काम कर सके ऑन बिहाफ ऑफ पीएचडी, जिसको हम तो अगर जहां कॉन्फिडेंशियलिटी एज ही सेड, जहां कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करने की जरूरत है वहां कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करे, लेकिन साथ साथ एक्सपर्ट इनपुट्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस हमेशा मुझे रेडीली अवेलेबल हो सके। आई विल बी हैप्पी। सर हमारे इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयर और को चेयर हैं मिस्टर बिमल जैन और एनके गुप्ता। I will nominate them to work with you, sir. Great. Thank you very much. Thank you very much indeed. With that, ladies and gentlemen, we close the open house session.